is not the first time कि किसी इंडियन एंटिटी को टारगेट किया. This is not the first time कि किसी इंडियन एंटिटी को टारगेट किया. 1998 जहाँ पे इंडिया की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इंटरसेप्ट किया था 8 kg ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर इन चेन्नई. And in 1994, there was uranium smuggling in one of the earliest recorded incidents, जहाँ पे पुलिस in Shillong and Magyala में 2.5 kg of uranium and they have arrested smugglers. Yeah. अभी भी जिस तरह अटैक के बाद डाउन प्ले किया जा रहा है कि कुछ इस तरह की चीज़ नहीं है, तो दिस शोकेस दिस फैक्ट कि वो अगेन सीरियसनेस नहीं ली जा रहा, या अगेन दैट इज कि अब वो चीज़ें हो चुकी है, दे कैन नॉट नाउ चेंज इट. सो वही जो बात थी 2019 के बाद भी देयर आर लॉट ऑफ वॉइसेस विद इन इंडिया व्हिच सीरियसली पॉइंटेड आउट कि वी नीड टू री-एग्जामिन द होल साइबर सिक्योरिटी ऑफ दिस इंडियन न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर. बहुत मुझे हैरत भी होती है और अफसोस भी होता है कि एक रियासत जो है, एक मुल्क जो कि अपने आप को कितना ज़्यादा हाइप क्रिएट करता है अपनी इमेज की, और वो अपने लोगों को सिक्योर नहीं कर पा रहा है. तो ये तो समझ लीजिए कि उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, वो जो एआई को बहुत ज़्यादा प्रोपगेट करते हैं, उसके ऊपर एक तमाचा है. द ग्रुप कुड बी समबडी फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ जिसने जो है इनको टर्न डाउन किया. ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ुबैदा अब्बासी और मैं हाज़िर हुई हूँ आपके साथ वर्ल्ड सर्विसेज रेडियो पाकिस्तान पे एक नए पॉडकास्ट एपिसोड पे. यहाँ पे हम बात करेंगे एक रीसेंट इंसिडेंट की जो कि हमारे हमसाया मुल्क में पेश आया. वो हमसाया मुल्क जो ऑफ़न अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ख्र करता है, लेकिन उसी हमसाया मुल्क के लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर विच इज़ बेस्ड इन तमिलनाडु नेम्ड एज कुदनकुलाम एक साइबर अटैक हुआ. उस पर बात करने के लिए हमने एक बहुत ही मायनाज शख्सियत को बुलाया है अपने स्टूडियो में. हिज नेम इज़ फ़हाद नबील. Sir Fahad Nabil has been my mentor for quite long. As a researcher and academician, I have learned a lot from him. He is a CEO of Geopolitical Insights. Fahad has research interest in security dimensions of CPAC, Hindutva-centric groups, privacy and data protection, cyber warfare, disinformation, and UN peacekeeping. He has a knack for AI and cyber security as well, and that is the reason we have him here right now in the studio. Thank you so very much for considering to be here with us on Radio Pakistan. We are very much honored to have you, sir. Let me give you a little bit of background what I'm talking about. So, starting from 1998 जहाँ पे इंडिया की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इंटरसेप्ट किया था 8 kg ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर इन चेन्नई. And in 1994, there was uranium smuggling in one of the earliest recorded incidents, जहाँ पे पुलिस in Shillong and Magyala में 2.5 kg of uranium and they have arrested smugglers who were carrying 2.5 kg of uranium, right? Fast forward to August 2024, where Indian law enforcement agencies again in Gopalnagi, Bihar arrested 3 individuals और उनसे कोई 50 ग्राम्स का जो है वो रेडियो एक्टिव मटीरियल जो कि अप्रॉक्सीमेटली $100 मिलियन बनता है, वो उन्होंने कन्फिस्केट किया था. इन 2021 prior to 2024 several trafficking incidents occurred in Maharashtra जहाँ पे पुलिस ने 7 kg of natural uranium सीज किया था. और in a separate 2021 busting, authorities seized 6.4 kg of uranium and arrested 7 individuals suspected of running an illicit radioactive material ring. Then again, 5 individuals were arrested in Dehradun in 2021, carrying a radioactive device that had been stolen directly from the highly secure Bhabha Atomic Research Power Plant. Yep. So, given this background, and then we have 23 nuclear power plants of India, and almost 11 plus minus are out of IAEA safeguard.
Over the past 3 decades, we have seen that India has experienced multiple documented incidents of nuclear material theft, illicit trafficking, and radioactive substance smuggling. It's not something that I am making it up or somebody else is making it up. It is all over the world, all over the news. It's documented, proved, you know. In this premise, एक इतने बड़े मुल्क का जो कि अपनी चीज़ों को इतना ज़्यादा फॉल्सली फेक करने की कोशिश करते हैं, उनका एक अपने बड़े साइबर सिक्योरिटी हमले का जवाब ना दे पाना, उनकी कितनी बड़ी वीकनेस को, वल्नरेबिलिटी को ज़ाहिर करता है। ये एक बहुत ख़तरनाक बात है, जो कि सिर्फ़ उनके लिए ख़तरनाक नहीं है, ना सिर्फ़ उनके शहरियों के लिए ख़तरनाक है, बल्कि और आस-पास के जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। टू बिगिन विद सर, आप प्लीज़ मुझे ये बताइएगा कि लेटेस्ट जो ये कुदान-कोलाम में डेटा ब्रीच हुई है, ये किस तरह से हो गई? और ये भी है कि आई थिंक रिलायंस ग्रुप के ऊपर ये पहला अटैक नहीं था, देयर वाज़ समथिंग प्रायर टू इट एज़ वेल इन द पास्ट। तो प्लीज़ थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन में आप हमारे ऑडियंस को बताइए एंड देन वी विल कैरी फॉरवर्ड। जी, इसमें ये था कि रिलायंस ग्रुप के ऊपर भी रिसेंटली अकॉर्डिंग टू सम साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स डार्क वेब के ऊपर उनका एक बहुत बड़ा डाटा डंप हुआ है अराउंड विच इज़ रिपोर्टली 1.2 टेराबाइट्स। अगेन उसमें से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर जो बात हुई दैट इज़ अराउंड 14 GB विच इज़ अराउंड 2% ऑफ दैट इंटायर डाटा डंप। तो अगेन बाकी डाटा डंप के ऊपर अभी अगेन देयर आर लॉट ऑफ पीपल विच माइट बी इन्वेस्टिगेटेड एंड ट्राइंग टू प्रोब के और उसमें कैसी चीज़ें विच इज़ ऑफ प्रॉब्लमेटिक नेचर। So this is जो कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पे साइबर अटैक हुआ, दिस इज सेकंड अटैक इन द 7th ईयर। इससे पहले 2019 में अटैक हुआ था। 2019 में जो अटैक का अगेन जो मेथोडोलॉजी थी वो ये थी कि वहाँ पे जो फॉर्मर डायरेक्टर थे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के, उनके और उनके कुलीग के पर्सनल और जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से उनके पे एक फिशिंग ईमेल अटैम्प्ट की गई और जिसको उन्होंने अगेन वहाँ पे वो जो डॉक्यूमेंट था या एक लिंक था उसको क्लिक किया, जिसकी वजह से उनके जो थ्रू देयर सिस्टम्स उनका जो कुदनकुलम का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स थे उन तक एक्सेस हासिल की गई। अपेरेंटली इनिशियली जो वहाँ से वॉइसेस विद इन इंडिया जो रेज हुई दैट वर पॉइंटिंग टू शायद कि इसके पीछे पाकिस्तान या चाइना, बट अगेन लेटर ऑन जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की गई बाय अ नंबर ऑफ रिनाउंड प्राइवेट साइबर सिक्योरिटी फर्म्स, दे पिन पॉइंटेड कि दिस वाज समथिंग व्हिच वाज डन बाय नॉर्थ कोरियन हैकर्स। उसमें अगेन डीप डाइव इनटू द टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन there is certain conclusions कि one नॉर्थ कोरियन जो हैकिंग ग्रुप था they tried to again रिकॉनेंस एक्टिविटीज़ कर रहे थे, वो जो अगेन जो उस पावर प्लांट के साथ जो एसोसिएटेड लोग थे उनकी बहुत अरसे से रिकॉनेंस कर रहे थे कि हाउ दे कैन डू फिशिंग और किन किन लोगों पे कर सकते हैं। एंड फ्रॉम देयर दे पॉइंटेड आउट कि जो अगेन जो फॉर्मर डायरेक्टर हैं बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के, उनको इस टारगेट विच कैन बी एक्सेस। तो पॉसिबली कंक्लूजन ये था कि अगेन दे ट्राइड टू impersonate as an employees of that same atomic research center और उनके थ्रू उन्हें फिशिंग ईमेल एक भेजी जिसको अगेन उन्होंने अनफॉर्चुनेटली लिंक को क्लिक किया जिसकी वजह से वो चीज़ हो पाई। और अगेन इट इज़ कंक्लूडेड दैट देयर वाज अ सेकंड नॉर्थ कोरियन हैकिंग ग्रुप व्हिच अगेन इंस्टॉल्ड द मैलिशियस सॉफ्टवेयर मेलवेयर जिसको हम आमतौर में कहते हैं, अगेन जो वहाँ पे किया गया। उस अटैक का जो कंक्लूजन जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से पता चला दैट वाज प्राइमरली ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग। दे डज नॉट प्राइमरली वांटेड टू डिस्ट्रॉय द systems within that nuclear power plant, but they wanted to collect information। और ये जो भी 2000 लेटेस्ट जो 2026 का अटैक है, इसमें भी ये चीज़ देखी कि द प्राइमरी आइडिया वाज टू कलेक्ट as much information। जो अगेन जो अभी तक उस पर डिगिंग की गई है और जो डाटा डंप जो डार्क वेब पे आया है उसमें ये चीज़ नजर है कि देयर आर लॉट ऑफ ब्लूप्रिंट्स अबाउट हाउ दैट न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिलायंस को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था 2018 में, दैट वाज टू मेक द यूनिट 3 एंड यूनिट 4। ऑल दिस जो पावर प्लांट थे उसके Unit 1 and 2 was functioning, which was contributing around 2000 megawatt to the Indian electricity grid। So idea ये था कि अगले कुछ सालों के अंदर 4 और यूनिट्स was to make functional ताकि 4000 मेगावाट की और प्रोडक्शन हो सके। तो यूनिट 3 और यूनिट 4 पे काम चल रहा था एंड दिस was supposed to be given by Reliance का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो one of the subsidiaries of that entire conglomerate है, they were supposed to hand it over by 2027 वो चीज़ थी। तो उसमें अगेन जो चीज़ अभी तक सामने आई वो दैट है इसके ब्लूप्रिंट्स सामने आए हैं, सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सामने आए हैं और वेंडर्स के बारे में बहुत सी डिटेल्स आई हैं। अगेन अभी तक जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स वहाँ से आया दैट इज़ कि कोई इंटरनल ब्रीच नहीं हुआ और अभी तक जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विच डज नॉट पॉइंट के जो डाटा सामने आया
that might have led to compromise of the internal systems. But again, जो चीज़ें सामने आई हैं, this is something which can possibly lead to more cyber attacks in the future, जहाँ पे जो vendors हैं उनके थ्रू और reconnaissance activities करके और phishing attacks करके और दूसरे तरीके करके टारगेट किया जा सकता है। अच्छा, एक तो ये बात है कि कहीं पे भी जब आप इस तरह की स्टेट एक्टिविटी मतलब होती है कि जिसमें स्टेट इन्वॉल्व है और स्टेट के ऊपर एक अटैक है ना, ये तो आपका सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिस पे आपने अटैक कर किया साइबर सिक्योरिटी का, तो वो तो ऑब्वियसली दे विल ट्राई टू कवर दैट थिंग अप ताकि उनको जो कि एक सीरीज ऑफ शर्मिंदगी और हजीमत का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़े, वन थिंग। बट यू पॉइंटेड आउट दैट 2% ऑफ डेटा, राइट? और फिर in a same sentence you mentioned that the North Korean group or whatsoever, they were trying to do it for the extraction of information, that what kind of, you know, that what kind of the material or whatever, whoever is working and the designs and you know everything is included in that information packet. मुझे ये बताएगा कि that information जिसकी हम बात कर रहे हैं वो किस तरह से यूटिलाइज हो सकती है फर्दर, मतलब उसको किस तरह से जो है वो मलिशली किस तरह उनको किया जा सकता है, उस इंफॉर्मेशंस को गलत उसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो अगेन जो 2026 का जो लेटेस्ट अटैक किया गया जिस ग्रुप ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की वर्ल्ड लीक्स, अब वर्ल्ड लीक्स अगर आप पूरा पैटर्न देखें तो इन्होंने ये मई 2025 के करीब इमर्ज हुआ था। एंड अगेन अप टिल नाउ जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दे हैव क्लेम्ड कि दे हैव टारगेटेड 173 डिफरेंट एंटिटीज, जिसमें ज़्यादातर प्राइमरली हेल्थ रिलेटेड एंटिटीज़ हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस रिलेटेड सेक्टर्स हैं। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि किसी इंडियन एंटिटी को उन्हें टारगेट किया, इससे पहले टाटा को भी उन्हें टारगेट किया था, जहाँ पे अगेन जो एप्पल और टेस्ला के जो कुछ प्रोटोटाइप्स थे उनको भी उनकी जो डिटेल्स थी उन्होंने पब्लिक की। इससे पहले भी जनवरी में इसी साल नाइकी के ऊपर भी उन्होंने इस तरह के टैक्स किए और वहाँ पे भी उनकी जो पर्सनस के कुछ रिकॉर्ड्स और बाकी चीज़ें थी दे आल्सो डम्प्ड इट। तो अगेन द पैटर्न अभी तक जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हुई है बाय नंबर ऑफ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, दे हैव नॉट पिन पॉइंटेड इट कि ये किस कंट्री से ओरिजिनेट कर रहे हैं या क्या इसका मकसद है, मगर अगेन व्हाट द पैटर्न शोज कि इट्स पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एस्पिनेज, सो उस लिहाज से दिस इज कंसर्निंग। अच्छा, यहाँ पे दो बातें मेरे जहन में आती हैं। एक ये कि जो 2 दिन का टाइम फ्रेम मिला, तो क्या जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने उस थ्रेट को या उस वार्निंग को या वो जो एक डिमांड थी उसको सीरियस नहीं लिया? उन्होंने 2 दिन के अंदर वो रैंसम जो भी उन्होंने मांगा था, डिमांड की थी जिस तरह से भी, तो वो क्या उनको वो चीज़ नहीं क्लिक की कि अगर ऐसा नहीं होगा, अगर हम जो है वो पे नहीं करेंगे तो ये हमारा डाटा जो है वो लीक कर भी सकते हैं। हालांकि उनके पास पास्ट में एक ऑलरेडी एग्जांपल थी कि ये चीज़ हुई है उनके साथ, वन थिंग। दूसरा सवाल का हिस्सा ये है कि आपने मेंशन किया कि टेस्ला और एप्पल का जो है वो जहाँ पे वो फैक्ट्रीज हैं तो वहाँ पे भी ये डाटा ब्रीच हुई थी, ऑलरेडी साइबर अटैक हुआ था, राइट? तो इससे क्या ये जाहिर नहीं होता है कि आपकी जो इंडियन कोलैबोरेशन है विद इंटरनेशनल एंटिटीज लाइक एलॉन मस्क और अदर्स, तो ये जियोपर्डाइज है हो रही है? मतलब ये तो कॉन्स्टेंटली, मतलब अगर इस तरह की कोई एपिसोड्स होती हैं तो ये तो इंडिया को एक ऐसी पोजीशन में रखता है कि जहाँ पे इंडिया को लोग बहुत ज़्यादा एक गैर महफूज रियासत देखेंगे और देखते होंगे भी और देख रहे हैं भी शायद। और इसके अलावा ये कि उनके साथ जो इंडस्ट्रियल वर्क रिलेशंस हैं वहाँ पे काम करना, उनके इंडस्ट्रीज कायम करना, मैन्युफैक्चरिंग करना और उनके साथ टेक ट्रांसफ़र जो है वो कोई बहुत सेफ नहीं है। ये वाला पर्सपेक्टिव सामने आ रहा है या नहीं? अच्छा, इसमें जो अगेन जब का पहला सवाल था उसके अंदर ये था कि अगेन जो अभी तक जो चीज़ें सामने आई उसमें ये था कि दिस जो 2019 के अटैक से डिफरेंस था इस अटैक में कि यहाँ पे रिलायंस का जो डाटा था वो अगेन एक थर्ड पार्टी सर्वर के ऊपर था, योटा के नाम से एक इंडियन डाटा सेंटर सर्विस प्रोवाइडर, उनके सर्वर को ब्रीच किया गया था जिसके थ्रू ये सारे डाटा डंप किए गए। अकॉर्डिंग टू योटा उनका ये जो क्लेम है कि मई के एंड में दे मॉनिटर सम एक्टिविटी ऑफ सर्टेन थिंग, जहाँ पे रैंसमवेयर एक ग्रुप जो है वो इस तरह की कोशिश कर रहा था मगर इट वॉज प्रिवेंटेड और इस तरह रिलायंस को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि इस तरह की अटैम्प्ट हुई थी। बट लेटर ऑन रिलायंस रीच आउट अगेन टू योटा के जून के अंदर इस तरह के क्लेम्स एक सर्टेन रैंसमवेयर ग्रुप कर रहा है कि इस तरह की उनने चीज़ें की हैं। एंड अगेन वही जो चीज़ थी जिसमें 2019 में भी ऑफिशियल पहले डिनाइल आई थी मगर बाद में एक्नॉलेजमेंट हुई कि इस तरह का कुछ ब्रीच हुई थी। इधर भी पहले एक सेंस ऑफ डाउन प्ले किया गया, तो अगेन जब चीज़ें सामने आई, जब इंटरनेशनल मीडिया पे इसको हाईलाइट किया गया
तो अगेन रिलायंस की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट की गई कि पार्शियल ब्रीच हुआ है, और अभी भी इंडियन अथॉरिटीज दैट ट्राइंग टू डाउन पे कि उस तरह की वो चीज़ नहीं है, मगर अगेन when you look upon the technical data and the experts in this domain, they point out कि again internal system जरूर शायद compromise ना हो based on जो existing information है, but again there is a potential of this fact कि recurrence activities के थ्रू कल को और इस तरह के phishing attempts करके और systems within जो systems उनको access करने की कोशिश की जा सकती है। जहाँ तक दूसरा सवाल आपका रहा कि अगेन पिछले साल की एक सर्वे है जहाँ पे अगेन दे कंक्लूडेड कि इंडिया में अराउंड जो सर्वेड ऑर्गेनाइजेशन थी 73% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर नॉट इवन अवेयर कि उनके ऊपर साइबर अटैक कभी हुआ भी है कि नहीं हुआ। एंड अगेन क्लोज टू this figure there were a lot of organizations which were not even aware of what is the cyber hygiene. So again concerning चीज़ उस लिहाज से भी है। और अगेन जो लास्ट अगर साल के आप स्टैटिस्टिक्स देखें आफ्टर यूएसए एंड फ्रांस, इंडिया वाज द थर्ड कंट्री जिसके सबसे ज़्यादा पर्सनल डेटा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। तो अगेन दिस ऑल थिंग्स पॉइंट आउट द फैक्ट कि अगेन साइबर सिक्योरिटी के ऊपर अनफॉर्चुनेटली उस तरह फोकस नहीं किया गया साइबर सिक्योरिटी परपेट्रेटर्स जिस तरह फोकस होना चाहिए था। 2019 के अटैक के बाद भी there were a lot of voices within India which pointed out कि we need to take serious this thing क्योंकि again आपका एक large nuclear power plant पर attack हुआ है, so this is something which need to be studied, but again unfortunately it seems कि lessons were not learned जिसकी वजह से ये चीज़ दोबारा से एक different way में सामने आई है and which can potentially lead to more attacks in future as well. That validated my previous point कि they tried to downplay their own thing और until unless कि वो international media के ऊपर गया और तब तक जो है वो उस चीज़ को cover up basically करने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ पे जो ये बात आप कह रहे हैं ना कि ये कह रहे हैं कि internally जो है वो बहुत ज़्यादा कोई भी ऐसी नुकसान वाली बात नहीं है या कुछ इस तरह का नहीं है, लेकिन we never know. There could be something going on already. और जबकि आपके पास ऑलरेडी कई एक ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि जब आपके ऊपर अटैक हुआ या सारी चीज़ें हुई, जब आप क्लेम भी करते हैं कि आपके आईटी सर्विसेज बहुत अच्छे हैं और आपके लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं और आपके लोग बड़े बड़े इदारों जैसे गूगल है, जैसे याहू है, जैसे और बड़ी कंपनीज़ हैं आपकी, वहाँ पे जो है बैठे हुए हैं, तो उसके बावजूद भी ऐसे लोग जो कि अपनी आई एम श्योर कि वो जो योटा आपने कहा है योटा जो वो कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं बेसिकली जहाँ पे जो जिनका जो डेटा सेंटर है जहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन थी, तो वो ऑब्वियसली वो नेटिव्स ही होंगे, वहीं के ग्रेजुएट्स होंगे, वहीं के इंजीनियर्स होंगे, और ये कहा जाता है, क्लेम किया जाता है कि हमारे इंजीनियर्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और यू नो दे आर वेरी केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स एंड मेकिंग थिंग्स, तो उसके बावजूद भी हाउ दे लेट दिस थिंग हैपन टू नॉट अ सिंगल इंडस्ट्री बट अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, राइट? क्योंकि इट्स नॉट समथिंग कन्फाइंड टू जस्ट you know your own territory. Basically it can go beyond that, I believe, the consequences and repercussions, everything. मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है कि आपने एक जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसकी सिक्योरिटी या उसकी किसी भी तरह से वो आप वेंडर्स के ज़रिए से वो आप चीज़ जो है वो आउटसोर्स की हुई है आपने उसका डेटा प्रोटेक्शन को या किसी और चीज़ को, या फिर ये एक मैकेनिज़्म है, अच्छा मैकेनिज़्म है? मतलब मैं न्यूट्रली आपसे ये पूछना चाहती हूँ। साइबर सिक्योरिटी के अंदर जब भी हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं हमेशा एक चीज़ जो हम एक्नॉलेज करते हैं कि ह्यूमन इज़ द वीकेस्ट एलिमेंट इन द एंटायर चेन। यू कैन हैव सिक्योर सिस्टम्स ऑफ बिलियंस और मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बट येट एट द एंड अगर एक ह्यूमन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए या कोई डिस्कंटेड एम्प्लॉय हो तो वो चीज़ आपकी वहीं पर ही ख़राब हो जाती है, इट बिकम्स कॉम्प्रोमाइज इन द सेंस। तो अगेन जो यहाँ पे भी चीज़ थी कि अनफॉर्चुनेटली ये अभी तक का थर्ड, अगर इंडिया की आप हिस्ट्री देखें तो ये थर्ड पब्लिकली नोन साइबर इंसिडेंट है। 1998 में भी पहली बार एक इंसिडेंट हुआ था बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ऊपर, उस दैट अटैक हैपेंड जस्ट फ्यू डेज आफ्टर इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट। तो अगेन इनिशियल ब्लेम फिर उस वक्त पाकिस्तान पे डाला गया था विदाउट एनी एविडेंस, मगर लेटर टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से पॉइंट आउट कि इट वाज टीनेजर्स सिटिंग इन यूएसए, यूके एंड न्यूजीलैंड जिन्होंने ये चीज़ की थी। बट अगेन उसके बाद ये अगेन वन वे अदर देखें तो these attacks have happened again, these are those जो publicly known attacks हैं। मतलब वो पाकिस्तान को बेसिकली स्केपगोट के तौर पे यूज़ करना हर तरह से हर चीज़ के लिए, जैसे कि उनकी एक हिस्ट्री रही है, उनकी कोर स्टार डॉक्ट्राइन से लेके और सारा अभी तक अगर आप देखें तो इट्स बिन डेकेड्स कि वो यही करते हुए आ रहे हैं, फैब्रिकेट करते हैं अपनी सारी चीज़ों को। आई रिमेंबर कि इवन
यहाँ पे बॉस्टन के अंदर जो है, आई वोंट नेम द इंस्टीट्यूशंस, बट इंडियन सिटीजन्स वर किक्ड आउट बिकॉज दे वर डूइंग द टेक ट्रांसफ़र, और दैट टू विदाउट गिविंग इट, मतलब विदाउट बेसिकली sharing it with anyone, with their authorities, or without taking a permission. You know, it's not allowed that whatever, if you are working in a company or multinational or whatever, it's not permissible that you share that tech with your own country or for any reason, right? And then come down to the recent era, we have seen that Qatar has deported people, Indians basically, जो कि spy कर रहे थे इसराइल के लिए. सऊदी अरब से जो है वो डिपोर्ट किया गया है. यूएस से कोई अराउंड 1100 लोगों को लास्ट ईयर डिपोर्ट किया गया है. जो फिगर बनती है आपकी, दैट इज़ 26, आई थिंक 24,500 अप्रॉक्सीमेटली एक है, और उसके बाद फिर वो मिला के जो है दूसरा 1000 यूएस वाला भी, दैट्स अराउंड 26,000 लोग जो हैं वो डिपोर्ट हुए हैं इन्हीं बुनियादों पे कि जिनको कहीं ना कहीं वो स्पाई कर रहे थे, कहीं ना कहीं पे किसी कंपनी के अंदर किसी गलत चीज़ों में मुलव्वस थे. तो फिर ऐसे लोग जो कि जिनका तशख़्ख़ुस ही यही है, जिनका कौमियत ही यही है कि वो कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं हर मामले में अपने आप को जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक मसनूई तौर पर बुलंद करने की कोशिश करते हैं. चाहे वो आप डिप्लोमेसी देखिए, चाहे वो वॉर देखिए. हमने मार्का हक देखा, वहाँ पे हमने किस तरह देखा कि उनके मतलब वन वे और अनदर, it was the cyber world, it was the digital thing, which basically led them to, you know, taste their loss very badly. और इस तरह से करके तो ऐसे लोगों के अंदर मैं आई वंडर कि कितना एक जो है साइबर सिक्योरिटी और एआई के अंदर वो चैम्पियनशिप क्लेम करने वाली जो ऑडेसिटी है वो किस तरह से आ जाती है. साइबर एस्पिनाज या इंडस्ट्रियल एस्पिनाज इज समथिंग जो क्वाइट कॉमन. इवन आप जब पिछले 20 या 21 साल का स्टैटिस्टिक्स निकालें, वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेशनल रीजंस के स्टेट्स दूसरे स्टेट्स के ऊपर या उनके जो डिफरेंट इदारे होते हैं या जिनको हम स्टेट एक्टर्स कहते हैं, उनको टारगेट ही प्राइमरली करती हैं फॉर एस्पिनाज पर्पसेस. अगेन उसमें आप कमर्शियल डेटा थेफ्ट भी कर सकते हैं, आप इंडस्ट्रियल डेटा थेफ्ट भी कर सकते हैं, और अगेन यू कैन लाइक नो डिटेल्स अबाउट सर्टेन पर्सन्स. सो दिस हैज बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस साइबर वॉरफेयर. के अगेन साइबर वॉरफेयर के अंदर बाकी रीजंस इतने डोमिनेट कभी नहीं होते जितना एस्पिनाज हो, चाहे वो अगेन इंडस्ट्रियल लेवल पे हो या अगेन आप स्टेट लेवल पे इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहे हो. तो दैट इज हाउ स्टेट्स हैव बीन फंक्शनिंग फॉर क्वाइट सम टाइम इन द साइबर डोमेन. अच्छा, एक क्वेश्चन टेक्निकली मुझे आपसे ये करना है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्रोमाइजिंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉन्ट्रैक्टर नेटवर्क एंड पेनिट्रेटिंग अ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी और रिएक्टर कंट्रोल सिस्टम. न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर जब हम ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी की बात करें, दैट इज द मेन हब ऑफ वेयर एवरीथिंग हैपेंस, कि जहाँ पे अगेन टेम्परेचर कंट्रोल, वाटर प्रेशर, सारी चीज़ें वहाँ से कंट्रोल होती हैं. अभी तक कोई इस तरह अटैक नहीं है जहाँ पे इस तरह का साइबर अटैक हो, अपार्ट फ्रॉम द स्टक्सनेट इंसिडेंट जब इट वाज अ जॉइंट यूएस इसराइल साइबर अटैक जहाँ पे ईरान के एक न्यूक्लियर इंडस्ट्रियल फैसिलिटी पे अटैक किया था. उसके अलावा कोई इस तरह का प्रोमिनेंट अटैक आपको नजर नहीं आता. अगेन जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव compromise systems को access करने की बात है, there have been a lot of incidents not only in India but again a lot of countries like South Korea, Japan और USA के अंदर भी इस तरह के incidents हुए कि जहाँ पे इस तरह के attacks हुए जहाँ पे again administrative level तक access दी गई. Again when we talk about this fact कि operational technology को अगर compromise करने की बात की जाए, then hostile actor has this control कि वो सब nuclear power plant के साथ क्या करे, and it can cause a lot of damage economically as well as human losses as well. सही सही सही. एंड मुझे ये बताइए कि इवन जब हैकर्स के पास जो है वो जैसे कि क्लेम कर रहे हैं कि रिएक्टर का कंट्रोल नहीं है, तो वो जो लीक ब्लूप्रिंट्स हैं या फिर इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स हैं या फिर सप्लायर इंफॉर्मेशन है या इंफ्रास्ट्रक्चरल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने बताया कि दे कैन बी यूज्ड के देखने के लिए कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो डोम है कैसा बन रहा है या पूरी फैसिलिटी जो है वो किस तरह से उसको बिल्ड अप किया जा रहा है, वो कैसे सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं? When it comes to those things, कि again जब एक blueprint की बात करें जहाँ पे again for hypothetically it's saying Unit 3 का अगर मेरे पास blueprint है, तो again as a hostile actor I can
डिसाइफर के मैं अगर इस जगह पे फिजिकल अटैक करना चाहूँ तो व्हाट आर द प्लेसेस जहाँ पे मैं करके ज़्यादा डैमेज कर सकता हूँ, या मैं साइबर अटैक करना चाहूँ तो व्हाट आर द पीपल जिनको मैं फिशिंग करली टारगेट कर सकता हूँ, कि मतलब कौन वल्नरेबल है या किनको किस तरह की ईमेल्स मैंने करनी है कि दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स डाउनलोडिंग अ सर्टेन डॉक्यूमेंट अटैच विद दैट ईमेल और क्लिकिंग अ स्पेसिफिक लिंक. I would say कि component of PsyOps is also included in this thing because they are evaluating your psychological preferences and then on the basis of those preferences they will be giving you the emails and then you would be proceeding with those emails जैसे usually होता आ रहा है. सोशल इंजीनियरिंग इज पार्ट ऑफ दिस होल थिंग, जहाँ पे अगेन आप जब भी बड़े अटैक्स देखती हैं उसके अंदर हमेशा ये देखेंगे कई महीने पहले से एक रिकॉर्डेंस एक्टिविटीज चल रही थी कि दे ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कौन वो इंडिविजुअल थे जिनको हम टारगेट कर सकते हैं. इससे एक अच्छी एग्जांपल है कि 2014 में जब नॉर्थ कोरियन हैकर्स ने सोनी कंपनी को टारगेट किया था, तो अगेन दे ट्राई टू आइडेंटिफाई द पीपल विद इन देम. उनमें से एक इंडिविजुअल को अगेन दे ट्राई टू टारगेट सेवरल इंडिविजुअल्स विद लुक्रेटिव जॉब ऑफर्स. उनको ईमेल के थ्रू एक ईमेल इस तरह है कि जहाँ पे there is a browser of such job opportunity and some of the clicked on and or downloaded the attachment and subsequently they were able to come into the Sony infrastructure और वो सब वहाँ पे उस टाइम पे वो they were able to leak a lot of future scripts, films के बारे में बहुत सी डिटेल्स, अगेन एक्टर एक्ट्रेसेस की सैलरीज, ईच एंड लॉट ऑफ थिंग्स, और उसमें बहुत से जो पर्सनल्स का रिकॉर्ड था वो भी कर लिया गया. एंड अनफॉर्चुनेट टू दिस डे a lot of them were never hired because of fact कि उनकी पूरी जो प्रोफेशनल लाइफ थी और उनकी जो पर्सनल डिटेल्स थी they were made part of the dark web. Oh, that's very sad. अच्छा, हम क्योंकि एक तो ये है ना कि हम पाकिस्तान को तो ये भी कहा जाता है कि 10 गुना छोटा मुल्क है, डेवलपिंग कंट्री है और इतने रिसोर्सेज भी नहीं हैं, और उसके बावजूद हम देखते हैं कि यूएस, फ्रांस और देन थर्ड हमारा हमसाया जो कि इतना बड़ा होने का क्लेम करता है. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस क्योंकि उनका जो है वो डिफेंस बजट हमसे बहुत ज़्यादा है और हर तरह से हमें बहुत ज़्यादा सुपरसीड करने की कोशिश और ये वो सारा कुछ जारी और सारी रहता है. तो उसके बावजूद क्या हमने पाकिस्तान में कभी कोई इस तरह की चीज़ देखी है? I mean, कोई भी हम कैसे देखते हैं? आपका अगर एक पर्सपेक्टिव मैं लूँ बड़ा न्यू उससे कैंडिडेट सा, कि आप क्या समझते हैं कि ये हमारे जो पावर प्लांट्स हैं वो कितने सेफ हैं, क्या है? Again, strictly from an academic perspective, there is no public evidence of such thing happening in Pakistan nuclear power plants. Again, अगर जो नॉन पब्लिक अगर कुछ है तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ दैट थिंग. इसमें ये होता है ना कि आपकी कोई भी चीज़ ऐसी, जैसे कि रिलायंस ग्रुप के बारे में हमने बात की, तो आपने कहा कि जब उनके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया का वो प्रेशर, वो दे वर ट्राइंग टू अंडरप्ले दैट थिंग, अंडरमाइन व्हाटएवर इज हैपनिंग, लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया ने वो डिग आउट करना शुरू किया तो वो फिर दे हैड टू बेसिकली एक्सेप्ट कि ये चीज़ हुई है और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर जो है वो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. तो कोई भी चीज़ अब इस दौर में जो कि इतना डिजिटल है, इतना तेज़ है, बहुत फास्ट रनिंग है सारा कुछ, तो उसमें छुपी नहीं रह सकती है, फर्स्ट थिंग. दूसरी चीज़ ये है कि व्हेन आई टॉक अबाउट पाकिस्तान्स न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, दे आर वन ऑफ द मोस्ट हाईली सिक्योर्ड, highly protected and highly safe power plants in the world. And you can have an evidence of that on IAEA's website. मैंने mention किया था अभी यहाँ पे कि 23 इंडिया के power plants हैं, if I'm not wrong, and almost a figure of 7 to 11 are out of IAEA safeguard, which means कि वो weapon grade uranium जो है उसकी enrichment कर रहे होते हैं वो, you know, और that means कि वो further आपका जो है वो आपके nukes की तरफ जा रहे हैं. पाकिस्तान में अगर हम देखें तो पाकिस्तान की सिविलियन जो आपका पर्पसेस हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उसके लिए यूज़ होता है. सबसे बड़ा तो हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो, जैसे आपने बताया कि उनका नेशनल ग्रिड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी था, इसी तरह से हमारा भी नेशनल ग्रिड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, विच वी विल बी बेसिकली इंक्रीजिंग बाय द ईयर ऑफ 2040, 2035 और 2040, हमारे 100 ईयर्स की सेरेमनी में जो है इंशाल्लाह. देन फिर हमारा जो है वो हेल्थ, आपने कहा कि वो जो रैंसम वाला जो ग्रुप है बेसिकली वो अटैक करता है आपकी इंडस्ट्रीज़ को जिसमें हेल्थ आती हैं, जिसमें और दूसरी इंडस्ट्रीज, सिविलियन इंडस्ट्रीज आती हैं. वहाँ पे भी देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो हेल्थ के अंदर मुख्तलिफ अपने कैंसर ट्रीटमेंट कर रहा है थ्रू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. इसके अलावा आपका जो है
आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट डिजीज़ेज़, और उसके बाद फिर आपकी इवैल्यूएशन, स्कैन्स, और फिर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, आपका वाटर सेक्टर, मतलब जस्ट यू जस्ट नेम इट। मुझे ऐसा फील होता है कि वी डोंट टॉक अबाउट इट सो मच, बट वी शुड, लाइक नाउ वी शुड टॉक अबाउट इट मोर, ताकि लोगों को पता चले, दुनिया को पता चले, जो लोग जहाँ पे हैं अथॉरिटीज़, फॉर एग्जांपल IAEA तो हो गया, या FAO हो गया, आपका जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है UN की, वो तो कोलैबोरेट करते हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ, बट अदर देन दैट जो हमारी आम आवाम है, जो हमारे लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस बारे में मालूमात है नहीं। तो अगर कंपैरिजन करें तो हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं, दे आर वन ऑफ द बेस्ट, जिनको ना सिर्फ IAEA ने रिकग्नाइज किया हुआ है, बल्कि लोग आते हैं फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से ट्रेनिंग के लिए, प्यास से पढ़ने के लिए, और अपनी जो भी उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको मज़ीद इन्हांस करने के लिए। क्योंकि अब ना कोई भी चीज़ ऐसी है नहीं कि जिसको पर्दे में रखा जा सके, जिसको बहुत छुपाया जा सके। Trust me when I'm saying it, because I'm a part of that thing, and I'm very proud of it that I'm a part, and I was a part of that particular organization that हमेशा आप समझ लीजिए कि पूरे साल ही जो है ना वो ओपन डोर पॉलिसी रहती है कि वो टीम्स आ रही हैं इंस्पेक्शन के लिए, वो बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो चल रहा होता है। फिर आपका जो है वो पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, आई हैवेंट सीन, इस पूरे सिनेरियो के अंदर मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया कि इंडिया की कोई ऐसी न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने उसको देखा हो या उस पर कोई रिपोर्ट दी हो। प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर कहीं पे ये चीज़ है तो। आपने कहीं पे देखा या आपने कहीं पे सुना? अगेन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वही जो आपने जिस तरह बात की कि सिविलियन जो पर यूजेज ऑफ न्यूक्लियर, उसका दिस इज समथिंग व्हिच नीड टू बी हाईलाइटेड कि अगेन दैट इज द न्यूक्लियर जो आपकी एबिलिटी है, दैट इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉर मिलिट्री, उसका एक सिविलियन पर्पस भी है, उसका क्रॉस मल्टीपल डोमेन्स भी है। अगेन उसमें अगेन जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि अगेन पाकिस्तान एज पार्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल कम्युनिटी वी नीड टू अगेन look into all this instance, जिस तरह अगेन ये जो यहाँ पे इंडियन न्यूक्लियर पावर प्लांट पे इंसिडेंट हुआ, we need to study as a scenario कि अगेन गॉड फॉरबिड टुमारो अगर इस तरह कोई हमारे यहाँ पे सिनेरियो की कोई कोशिश भी करे तो हाउ वी नीड टू टैकल दिस सिचुएशन। सो अगेन इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग टू study all these scenarios which are occurring around the world and to best prepare yourself for better to be safe than sorry, right? And given this scenario, Fahad, I really wonder कि I'm sure you must have heard about NSG waiver, नॉन सप्लायर्स ग्रुप का जो एक वेवर है, और उसमें ये है कि जब आप कुछ देयर आर सर्टेन कंट्रीज, उसमें फिर जब आप इंक्लूड हो जाते हैं उस ग्रुप के अंदर तो फिर आपका जो है वो टेक ट्रांसफ़र और आपकी जो सिविलियन यूजेजेस हैं और फिर आपका एड वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि वो दैट आपके लिए दरवाजे खोल देती है अपॉर्चुनिटीज़ के ना। जो हम जो हैं एज अ पाकिस्तानी इतनी सारी चीज़ों के बावजूद भी हमें वो एक रिस्ट्रिक्शंस या आप समझ लीजिए कि हमारे लिए लोग जो हैं वो थोड़ा सा कंसर्न होते हैं। एंड आई वंडर कि एक मुल्क है जिसकी हिस्ट्री रही है कि जहाँ पे थेफ्ट भी है, न्यूक्लियर थेफ्ट है और इलिसिट स्मगलिंग है, स्टील किया जा रहा है, जहाँ पे पावर प्लांट्स फट रहे हैं, जहाँ पे डाटा लीक्स हो रहा है, जहाँ पे उनकी आबादी को जो है नुकसान पहुंच रहा है। ग्लोबल पावर्स जो है वो उसको एडवोकेट कर रही होती हैं कि उसको इंक्लूड किया जाए, और पाकिस्तान जो कि एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर कंट्री है उसको जो है वो अंडरमाइन कर रहे होते हैं कि आप नहीं आ सकते इसके अंदर। ये डाइकोटमी, ये क्या, इसके ऊपर क्या आपकी राय है? सिर्फ अगर NSG के अलावा भी अगर हम बात करें तो अगेन देयर आर डबल स्टैंडर्ड्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हम टाइम एंड अगेन देखते रहे और पिछले कुछ सालों के अंदर जो इवेंट्स होते रहे, दैट हैज़ मैनिफेस्टेड अ लॉट अबाउट दिस फैक्ट कि किसी एक मुल्क के लिए जो शायद नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, अगेन जो ह्यूमन राइट्स के स्टैंडर्ड्स हैं या कुछ भी बेंचमार्क है, दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट कि अगर उसके ऊपर वो चीज़ हो जाए। एंड वी हैव बीन सीइंग एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल सिस्टम, जहाँ पे हमने देखा है कि जब तक एक मुल्क के इंटरेस्ट के अंदर कुछ हो तो दैट इज़ ऑल गुड फॉर देम, एज लॉन्ग एज वो अगर उनके इंटरेस्ट को थ्रेट करना स्टार्ट कर दें तो दे लुक द अदर वे। फिर उनको वो जो उनकी अपनी शायद प्रिंसिपल या स्टैंडर्ड्स हों, दे आर विलिंग टू वायलेट इट एंड फॉरगो देम। दैट इज़ दिस जो अगेन जो NSG का वेवर की भी बात करें, बाकी जनरल भी अगर हम बात करें, दैट इज़ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम जिसके अंदर यही है कि जहाँ पे जब तक आपके इंटरेस्ट सर्व हो रहे होते हैं, वेयर इज कॉमनैलिटीज ऑफ इंटरेस्ट,
तो एवरीथिंग इज गुड एज लॉन्ग एज जो कॉमनैलिटीज ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहती, जब डाइवर्जेंस आती है तो वी सी अ लॉट ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स कमिंग आउट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो लीक्ड इन्फॉर्मेशन है और ये सारा जो डाटा इतना सारा ब्रीच हुआ है, तो क्या ये होस्टाइल जो है दूसरे एक्टर्स जो हैं वो कैन दे यूज़ और मिस यूज़ दिस थिंग फॉर अ फ्यूचर साइबर अटैक और मे बी फिजिकल इंट्रूजन और सैबोटाज ऑपरेशन और सोशल इंजीनियरिंग, जो आपने पहले भी थोड़ा सा वो किया है, अगेन मेंशन मैंने किया बात की कि वो चीज़ हो सकती है। इंटरेस्टिंगली इनमें से एक डॉक्यूमेंट के अंदर ये क्लेम भी किया गया था कि द रिलायंस हैव टेकन अप इंश्योरेंस ऑफ $120 million in case of possible future terrorist attack. We showcase this fact कि again this is a thing which should not have come out in the public knowledge, but this has come out because of that data dump. तो we showcase कि a lot of suppliers की details वहाँ पे सामने आई हैं। तो anyone who is one way or other connected with the रिलायंस ग्रुप, खासतौर पे जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एंटिटी है जो खासतौर पे इस प्रोजेक्ट को देख रही थी, they seriously need to look after their arrangements of partnerships मतलब with ये कि them. ये खुद साख्ता चीज़ भी हो सकती है, ये एक सेल्फ क्रिएटेड पूरा इंसिडेंट भी हो सकता है जस्ट टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, दैट्स वो व्हाट अगेन यू आर वो जो सजेस्टिंग। अगेन जो इंश्योरेंस थी दैट वाज स्पेसिफिक इन केस ऑफ एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, देयर माइट बी hypothetically some entities behind this data breach who wanted to benefit from this thing. तो अगेन जो डाटा डंप किया गया इसको एनीबडी जो कि इंडियंस भी हो सकते हैं, मतलब इंडियंस खुद भी हो सकते हैं ना, जैसे आपने कहा कि somebody who wanted to basically take down their shares as well, तो वहाँ पे चूंकि आपकी इंडस्ट्रीज खुद भी हैं, वो आपस में राइवलरीज भी होती हैं, हो सकता है कि दिस कुड बी द ग्रुप कुड बी somebody from India itself जिसने जो है इनको टर्न डाउन किया हो या ये ब्रीच की हो। तो ये जो इल्ज़ाम लगा देते होते हैं बगैर किसी सबूत के दूसरे मुल्कों के ऊपर, और बहुत फ्रीली पाकिस्तान को एज अ स्केपगोट, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आपको, कि इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ तो फिर इवेंचुअली दैट कम्स डाउन के ये तो इनका जैसे हमेशा से जिस तरह ये खाक वो करते हैं, चाटते हैं, इस तरह से ये हमेशा की तरह इस दफ़ा भी ऐसा ही होगा। मुझे लगता है कि फॉर दिस एपिसोड वी विल नॉट बी वेट, I don't think so that we would be waiting for that long for like 5 years 6 years, but I think शायद उससे काफ़ी जल्दी, मतलब maybe this year or maybe within 6 months or something, we will get to see कि actual reality क्या थी, या हो सकता है उससे भी जल्दी हम जो है वो उसको देख लें। फिर ये बताइएगा कि ये जो डिपेंडेंस है कॉन्ट्रैक्टर्स की और क्लाउड प्रोवाइडर्स की कंस्ट्रक्शन कंपनीज के ऊपर और टेक्नोलॉजी ये वेंडर्स जो होते हैं, तो क्या ये एक्सपेंड करता है साइबर अटैक की सरफेस को एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के तनाजुर में या नहीं? यस, इसमें अगेन ये चीज़ है कि जितने आप एंटिटीज इन्वॉल्व होती जाती हैं, उनकी मल्टीपल क्रेडेंशियल्स होती हैं, वेरिफिकेशन मेथड्स होते हैं, तो अगेन जो अटैक सरफेस है वो बढ़ता जाता है विद द मोर एंटिटीज आर इन्वॉल्व विद सच अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो वो पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। और जितने भी हमने पिछले जो 5 प्रोमिनेंट इंसिडेंट्स के देखे जहाँ पे एक न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे ऐसे ही देखा गया कि कहीं ना कहीं कोई कॉन्ट्रैक्टर या कंसल्टेंट की सिस्टम्स कोई कॉम्प्रोमाइज हुए, जिसकी वजह से एक इम्पैक्ट उस न्यूक्लियर पावर प्लांट पे भी आया है। तो अगेन द मोर individuals or more entities are involved, the more the attack surface for a cyber attacks is always there. राइट, आपने ऑलरेडी कंपेयर किया था 2019 वाले मालवेयर इंसिडेंट को, वो जो यहीं पे ही हुआ था, उसके बाद भी जो है वो इन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया अपनी इस चीज़ के ऊपर, तो क्या ये इनकी एक इंतज़ामी कमज़ोरी को भी हाईलाइट करता है कि इनके अंदर जो है वो सेंस नहीं है इस बात का कि ये ना सिर्फ कि अपनी कोई आम फैक्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं या एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहे हैं जिसके अंदर अगर कोई भी इंसिडेंट हुआ तो इनके अपने लोग भी सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। तो क्या ये इस चीज़ को जाहिर नहीं करता कि इनको जो लोग अभी वहाँ पे बैठे हैं, जो ओहदों पे हैं और जिनकी जिम्मेदारी थी इसकी प्रोटेक्शन, तो क्या ये बात जाहिर नहीं होती कि ये अपने खुद के लोगों के भी नहीं हैं, ये अपने खुद के लोगों से सिंसियर नहीं है, लॉयल नहीं है, ये उनकी जानों को भी स्टेक पे रख के इन्होंने जो है ये इतना बड़ा कदम उठाया। बिकॉज 2019 से लेके अभी तक हम देखते हैं कि एक ही हुकूमत चली आ रही है, ठीक है,
और उस हुकूमत के अंडर ही जो है ये सारे लोग हैं ना कहीं पे तो आपकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, जैसे कि मैंने मेंशन किया आपको कि पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी बाकायदा जो है वो चेक्स कर रही होती है, एंड देन वी हैव कांस्टेंट इंस्पेक्शंस बाय अदर external auditors as well, and people from IAEA keep coming to us and they keep inspecting, they keep checking our equipment, our procedure, our safety and security protocols and everything. They do it very often. So you know, I believe कि इनका कोई ऐसा इन प्लेस प्रोटोकॉल नहीं है कि जहाँ पे इन्होंने ये इंश्योर किया हो कि हमारे लोग भी जो हैं वो महफूज हो जाएं. Isn't it कि ये सिर्फ एक अपना एक फॉल्स नैरेटिव पाकिस्तान के अगेंस्ट बनाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा सारा अपनी एफर्ट लगा रहे हैं, अपने लोगों को सिक्योर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे तो डायरेक्टली हमसे पहले, फॉर एग्जांपल कि हमसे पहले या रीजन में किसी भी और कंट्री से पहले तो उनके अपने लोग हैं ना जो कि इससे इफेक्ट होंगे. इसमें वही चीज़ है कि जिस तरह 2019 का जो अटैक था वहाँ पे अगेन वही जो मैंने पहले बात की थी कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर द ह्यूमन इज ऑलवेज कंसिडर्ड द वीकेस्ट लिंक. तो 2019 के अटैक के अंदर वही था कि ह्यूमन वाज द वीकेस्ट एलिमेंट, कि जहाँ पर उन्होंने फिशिंग अटैम्प्ट की 2 ऑफिशियल्स के ऊपर एंड दे क्लिक्ड अ सर्टेन लिंक जिसकी वजह से सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज हो गए. यहाँ पे अगेन एक थर्ड पार्टी जो डाटा सेंटर प्रोवाइडर था उसका सर्वर लीक किया गया. अगेन उसके पीछे क्या अगेन जो चीज़ थी, जो अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत बड़ा मसला है कि 2019 में भी पहले एक स्टेट ऑफ डिनाइल की गई, फिर आप एक्नॉलेज करते हैं, तो अगेन वो ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है कि अगेन आप इन फ्यूचर भी अगर आप शायद पूरा सच बताने की कोशिश करें तो द एक्सेप्टेबिलिटी इज वेरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ पीपल आर गोइंग टू विलिंग टू बिलीव यू. अभी भी जिस तरह अटैक के बाद डाउन प्ले किया जा रहा है कि कुछ इस तरह की चीज़ नहीं है, तो दिस शो केस दिस फैक्ट कि वो अगेन सीरियसनेस नहीं ली जा रहा, या अगेन दैट इज कि अब वो चीज़ें हो चुकी है, दे कैन नॉट नाउ चेंज इट. सो वही जो बात थी 2019 के बाद भी देयर आर लॉट ऑफ वॉइसेस विद इन इंडिया व्हिच सीरियसली पॉइंटेड आउट कि वी नीड टू रीएग्जामिन द होल साइबर सिक्योरिटी ऑफ दिस इंडियन न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर. बट अगेन जो चीज़ सामने आती कि उस तरह फोकस नहीं किया गया जिसकी वजह से ये चीज़ दोबारा ही, और अगेन वही जो बात जो मैंने पहले की कि यू कैन हैव protective systems of millions of billions of dollars, as long as humans are not sensitized about cyber hygiene, they can always become vulnerable. और वो अपनी पॉलिटिकल इमेज की खातिर जो है वो अपने शहरियों को कोलैटरल डैमेज के तौर पे यूज़ करेंगे, जैसे कि वो हमेशा से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, बी इट कश्मीर, बी इट पहलगाम इंसिडेंट, बी इट एनीवेयर एल्स इन अदर स्टेट्स ऑफ कोर्स, इन पंजाब और जितने भी आपके रीजन से कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है. बहुत मुझे हैरत भी होती है और अफसोस भी होता है कि एक रियासत जो है, एक मुल्क जो कि अपने आप को कितना ज़्यादा हाइप क्रिएट करता है अपनी इमेज की, और वो अपने लोगों को सिक्योर नहीं कर पा रहा है, तो ये तो समझ लीजिए कि उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, वो जो AI को बहुत ज़्यादा प्रोपगेट करते हैं उसके ऊपर एक तमाचा है ये. और ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स. ये पूरी गुफ्तगू का मकसद ये है कि आवाम में आगाही फैलाई जा सके, उनको बताया जा सके कि आसपास के मुल्कों में क्या हो रहा है. वर्ल्ड सर्विसेज बेसिकली केटर कर रहा होता है आपकी इंटरनेशनल ऑडियंसेस को, और हम अपने लोगों को भी ये बताने की कोशिश करते हैं कि बैनुल अक़वामी तौर पे सियासी मंजरनामे में क्या हो रहा है, या फिर जो भी अहम मौज़ूआत हैं वहाँ पे आपको अपडेट रखा जा सके, उन सारी चीज़ों को आपसे शेयर किया जा सके थ्रू दीज पॉडकास्ट. सो अगेन थैंक यू सो वेरी मच सर. Recently seen China has launched World AI Cooperation Organization, right? तो उसके ऊपर भी बात करनी है आप. So it would be very interesting session again from Radio Pakistan World Services. Fi Amanillah. ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है.